with us for today's session Professor UC Vashist sir, a very senior teacher educator, a doyen of education, in fact, I should say. And he has retired from services. He was working as professor of education in University of Lucknow. He has also successfully worked as chairman, Department of Education, as also as a dean, Faculty of Education, University of Lucknow. His area of specialization are philosophy, Indian philosophy of education, teaching of science and biology, rural development, curriculum development, higher education, school education management, Sarvodaya philosophy, etc. Sir has been the member of, Sir was the active member of Executive Council, Academic Council, and has been associated with Center for Vivekananda as a director, and associated with Center for Gandhian Studies, Gandhian Thought. He is active member of BOs of many universities like IGNOU, New Delhi, BOs of Vishwa Bharati, Shantiniketan University, West Bengal. He has been actively involved in many universities for academic purposes, like some of the universities I am naming here: University of Delhi, New Delhi, MD University, Rohtak, University of Mumbai, Vanasthali University, Rajasthan, Vanasthali Vidyapeeth, Rajasthan, Rajasthan Vidyapeeth, Goa University, MS University, Baroda, Kota Open University, Barkatullah University, Bhopal, and Aligarh Muslim University also. Sir has worked as a member of NEC evaluation team. Sir has worked as a member of NCT evaluation panels, and you will find regularly him on all the panels of NCT when as and when NCT is assigning job, he's readily accepting and doing that work also. He has also shared his expertise with national bodies like MHRD, NUPA, NCERT, UGC, UPSC, ICCR, in different national bodies he's associated, and he's working in collaboration with these institutions. He contributed in development of more than 40 films as a script writer, editor, translator. I came to know about this today only, sir. This is a special information I've got to know. And he has also successfully supervised around 25 PhDs in education. And he has also published a good number of papers in various reputed national and international journals, and has also presented a good number of papers in national seminars and conferences. He has been awarded Shikshak Shri Samman by UP government, and many other things are there in his CV. Because due to the shortage of time, I'm not telling any every detail. Participants, his introduction is that he is Yushi Vasista, and you will enjoy his session, and you will always like participant has always liked this session, and today will also be liking his session. He will be delivering session on an overview of IKS, that is Indian Knowledge System. Thank you, sir. You are a very busy person. Even then, you have accepted our invitation. I know that how busy you are, and as and when you are given we are getting, actually, this is our opportunity that you are here, sir, before us. Thank you so much, sir, and all is yours, sir. Thank you, Dr. Muhammad Shakir Sahab. I feel honored and elated to be associated with you and AMU. AMU is a university with great tradition I always admire. Okay, friends. In my way, I say, Sat Sri Akal, copy to all. The topic which has been assigned to me is an overview of Indian knowledge system. Before I come upon the topic, let me decide certain features. First is language. I have been made to understand that most of us are the ones who would prefer Hindi, and therefore I'll be speaking most of the time in Hindi with the technical terms and quotations in English. Is there someone who just cannot understand Hindi from extreme south or extreme northeast? If there is someone, please audio on and just tell me. Is there someone? Fine, that settles it. Second, friends, honestly speaking, मैं ऑनलाइन मोड के बहुत फेवर में नहीं रहता. ऑनलाइन मोड की सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं किस सीमा तक आप तक पहुंच पा रहा हूं. टू व्हाट एक्सटेंट आई हैव बीन एबल टू कम्युनिकेट. आपके चेहरे में सबके एक साथ नहीं देख सकता, इसलिए ये नहीं जान पाता. इसमें भी पर्टिकुलरली खैर वो अगली वो है, तो उस दृष्टि से
हम लोग प्रैक्टिकली ये डिसाइड करते हैं कि अंत में 10, 12, 15 मिनट हम लोग आपके सवालों से डील करेंगे, वरना हम लोग मैं बातचीत अपनी जारी रखूंगा। लेकिन यदि कहीं महसूस हो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, आना ही चाहिए इन बिटवीन, इट इज सच एन इंपॉर्टेंट इशू, तो प्लीज यू कैन पुट योर audio on mode and ask your question. 2, 3, the UGC demands it, MMTTC asks for it, technicality asks for it, ethics also demands it, that we should have our audio off and video on. I repeat, our videos should be on, friends. Ethically, that is desirable. Technically, that is desirable. Legally, that is desirable. MMTC also asked for it, and UGC also asked for it. I repeat, audio off and video on. Video on कीजिए दोस्तों. Please keep your video on. दरअसल क्या है कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि कोरोना पीरियड में ये टेक्निक मैंने अपनी ग्रैंड डॉटर से सीखी। वो 6ठी 7वीं 5वीं में 3री 4थी में पढ़ती थी, तो उस समय वो अपना ऑडियो भी ऑफ कर देती थी, वीडियो भी ऑफ कर देती थी और सारा टाइम खेलती रहती थी, मौज मनाती थी। तो मुझे लगता है कहीं आप ही उसी परंपरा के वाहक ना हो, तो इससे बचने के लिए, तो चूंकि मैं वो सब देख चुका हूं, इसलिए आपसे कहता हूं, आई रिपीट, अभी भी आधे से ज्यादा लोगों ने ऑडियो ऑफ तो किया है लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया है। आई रिपीट, मैं बीच में नाम भी लूंगा, इस बात को 4-5 बार कहूंगा भी। ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन, फ्रेंड्स। नंबर 4, आप में से हम लोग आज भी, हालांकि मैं 70 के पार होने जा रहा हूं, 70 के, आई एम अप्रोचिंग 70 years of age, मैं भी इतना वो नहीं हूं, पर आप तो मुझसे सब यंग हैं। आप लोग अभी भी साइबर फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं। जैसे अबुरुमान साहब अनरबी जी ने हाथ खड़ा किया है, क्या वो कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि हम कई बार बटन फ्रेंडली नहीं होते और जो बटन दबा देते हैं। सर प्लीज डू। यस मिस्टर अनरबी साहब। Sorry to interrupt, sir. The reason behind the camera off is only because the connectivity would not be clear then. We would like to listen you more clearly, sir. If we all on our video, yes, sir. In your case, fine, I agree with you, I say okay, but again, with due regard, with all humbleness at my command, I would say that we are supposed to be data enriched people who can have audio, video, everything at all modes. Okay, there is someone who is having the audio, not audio off. Dr. Mohammed, please keep your audio off, sir. Audio off करें सर। सर जी सर वीडियो ऑन कर, सर वीडियो ऑन करने पर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। सर मेरे ख्याल से आवाज ब्रेक होने का कारण यह है सर, मैं बता दूं, जब एक से ज्यादा ऑडियो ऑन हो जाते हैं तो आवाज गड़बड़ाती है। आप अपना ऑडियो ऑफ कर दें, आवाज बेहतर आएगी। मोहम्मद साहब, डॉक्टर मोहम्मद प्लीज। हाँ, अब आपको बेहतर आवाज सुनाई देगी। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ईच वन ऑफ अस शुड हैव द ऑडियो ऑफ। तो आई विल नॉट बाय द आर्गुमेंट, एज फार एज पॉसिबल I would just now modify the statement. As far as possible, we should keep our video on, friends. And I'll be reminding in between time and again. मैं इनका open queue को बंद कर दूं. And the last I think, personally, मैं 2-3 बातें, छोटी छोटी बातें और हैं. I do not appreciate your thanks, good morning, very good morning messages. मुझे इनसे बहुत कुछ ज्यादा मैं appreciate नहीं कर पाता. ठीक इसी तरह से बीच बीच में जब आप ये नीचे से फूल से उड़ाते हैं, फ्लावर से उड़ते हैं, आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट। लेट अस कंसंट्रेट ऑन द मेन थीम। और हम लोग बड़े हैं, मैच्योर हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, जैसा कि मोहम्मद शाकिर साहब कह रहे थे कि हम सीनियर मैच्योर पीपल हैं। सो लेट अस
have the proper demonstration of your seniority and maturity here as friends. So I begin. Indian knowledge system. मैं इसमें मुख्यतः 3-4 प्रकार की बातें करूंगा. पहला मैं इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, इंडिया के स्पेशल फीचर्स क्या है जनरली. दूसरे स्तर पर मैं जो इंडियन हेरिटेज सिस्टम है, किस किस चीज की हेरिटेज है, मैं उसकी बात करूंगा. फिर मैं इंडियन सॉइल या इंडियन कल्चर की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूंगा. मैं थर्ड इसमें अंत में कुछ विषय जो जैसे विभिन्न विषयों की दृष्टि से भारतीय परंपरा और संस्कृति की बात करूंगा. और लास्ट में यदि आप चाहेंगे तो 2-4 रेफरेंसेस आपको बता दूंगा. सो फ्रेंड्स, लेट अस फर्स्ट बिगिन. इंडिया, भारत एक ऐसा देश है जिसकी अपनी स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं. हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि हमारा अफगानिस्तान से लेकर और जावा, सुमात्रा, मलाया और ये अपना इंडोनेशिया, बाली, यहाँ तक इंडियन कॉन्टिनेंट था. हमारा एक और बात का वी कैन बोस्ट ऑफ ए टिपिकल थिंग विच इज रेयरेस्ट इन द वर्ल्ड. India is the only country which has got the oldest living city till date. Oldest living city of the world, that is Banaras, is in India, in UP, we all know. बनारस के बारे में सतयुग में भी बात की जाती थी, त्रेता युग में भी बात की जाती थी, और द्वापर युग में भी बात की जाती है, कलयुग में तो है ही. We are basically a history oriented society. हम इतिहास उन्मुखी समाज हैं. हम सदा आनंद लेते हैं. हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे यहाँ ऐसा था, हमारे पूर्वदादे ऐसे थे, हमारे पुरखे ऐसे थे, ये मकान हमारे दादाजी का है, ये किताब हमारी तब की है. We seek pleasure in talking of old things, old people, old sayings, पुरानी कहावतें, कहानियां, इन सबको हम बड़े चाव से, आनंद से. इस इतिहास का प्रेम दुनिया में एशियन कंट्रीज में ज्यादा, इन पर्टिकुलर इंडिया में ज्यादा पाया जाता है. इसमें भी एक बड़ी खास बात है. वी हैव बहुत ही हमारा प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है. यदि हम दुनिया की दृष्टि से देखें, यहाँ मैं एक और रेफरेंस देना चाहूंगा आप लोगों को. मेरा बड़ा रुचि का विषय रहा है कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति कितनी पुरानी है. हम सब ने मोटे तौर पर पढ़ा था कि पहले बेबीलोनियन संस्कृति है, वो पुरानी थी. फिर हमने पढ़ा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो संस्कृति पुरानी थी. फिर हमने पढ़ा हड़प्पा संस्कृति सबसे पुरानी है. कितनी पुरानी है इसके बारे में भी मतांतर है. पहले हमने पढ़ा कि जो अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑन अर्थ, दुनिया पर में सबसे पुराने लिखित डॉक्यूमेंट्स वेद 1200 ईस्वी पूर्व पाए गए हैं. हालांकि इसमें फिर मतांतर रहा. मैं भारत में जहां कहीं भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जाता था, ये मेरा प्रिय वर्षा रहता था और मैं बात करता था कि कितना पुराना हमारा इतिहास है. इस बारे में मुझे एक किताब पल्ले पड़ी, बाल गंगाधर तिलक जी की, और उन्होंने किताब का नाम है द आर्कटिक पीपल. उस किताब ने मेरी आंखें खोली और उस किताब को 20 यूरोपियंस ने भी उस किताब की बात को माना है, उस लोहा माना, कहा है कि यस, ये बिल्कुल ठीक लिखी है. उन्होंने क्या किया कि वेदों को ये माना जाता है कि सबसे पुराने स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं, और कि वो वेदों में जिन खगोलीय जिन नक्षत्रों का वर्णन माना जाता था, स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस वगैरह का, तो इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक जी ने रिवर्स कैलकुलेशन शुरू करी कि अब से कितने वर्ष पहले ये कॉन्फ़िगरेशन रही थी, कॉन्स्टेलेशंस रही थी तारों की. इससे दृष्टि से इन्होंने रिवर्स कैलकुलेशन किया तो वो 8000 BC पहले निकला. टेक्निकली वो कह रहे हैं मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, तो दोस्तों मैं बार बार कहूंगा, मैं पूर्ण आदर और सम्मान सहित कहूंगा, मेरा माइक ठीक है
कृपया अपने उसको रीस्टार्ट कर लें, ऑडियो ऑन ना करें। आई बी टेलिंग यू इट अगेन एंड अगेन, और नेचुरली मैं इस बात को तो रिपीट कर ही दूं, वीडियो ऑन एंड ऑडियो ऑफ। खैर, तो वो बताते हैं कि 8000 BC का मतलब है रफली 10,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है। इकबाल अहमद साहब कह भी गए हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक और मैं कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि गेहूं का आविष्कार 10,000 साल पहले हुआ है, यानी 8000 BC, अब से 10,000 साल पहले। वेदों में यह बड़ा साफ लिखा है कि गेहूं से पहले जौ का प्रयोग किया जाता था। वेदों में जौ के प्रयोग की बात 20वीं जगह आई है। तो जौ गेहूं से ज्यादा पुराना है, ये भी हमने पढ़ा था बायोलॉजी में। तो ये बात दोनों मिल रही हैं कि ये संस्कृति, द इंडियन नॉलेज सिस्टम इज एटलीस्ट 10,000 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 10,000 साल पुराना है। खैर, इंडियन नॉलेज सिस्टम के समय हमें हर हालत में बात करनी पड़ेगी रिलीजन की, स्पिरिचुअलिटी की, नेचर ऑफ मैन की। हमारा जो लेटेस्ट कॉन्सेंसस वो हुआ है, सर्वे हुआ है 2021 का, उसमें भी यदि मैं गलत नहीं हूं तो 0.001 या 5% लोग एथीस्ट हैं। हमारा भारतीय समाज ज्यादातर, मैं कहूंगा कि 99.99% ईश्वर में विश्वास रखता है। ईश्वर के रूप अलग अलग हो सकते हैं, एंड वी आर स्पिरिचुअलिस्टिक बाय नेचर। एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन इन इंडिया, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत जरूर आता है। मैंने खूब देखा है, मेरे साथ, अपने साथ भी देखा है कि यंग एज में हम लोग मार्क्सियन हो जाते हैं, और फिर बड़ी उम्र में जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं, मार्क्स का रंग थोड़ा सा उतरने लग जाता है, और हम बाई एंड लार्ज हम लोग थीस्ट बन जाते हैं, ईश्वरवादी बन जाते हैं। हमारी मेंटेलिटी के बारे में कहा जाता है कि वी आर फेटलिस्टिक बाय नेचर, भाग्यवादी लोग हैं। हम लोग नॉन मेटीरियलिस्ट हैं, हम मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। मुझे याद है 60s में जापान से एक बहुत बड़े पत्रकार आए थे, मैंने अखबार में पढ़ा था। तो उन्होंने यहाँ सारे भारत में गए, घूमे, उन्होंने कहा कि मुझे 2 चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया में आके मुझे पता चलता है दैट द एज हैज ए ग्रेस। जितना बड़ी उम्र का आदमी होता है, इंडिया में उसको खूब सम्मान मिलता है, सारी दुनिया में इतना सम्मान नहीं मिलता है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो बात कही कि यहाँ का तो हर आदमी फिलोसफर है, यहाँ का भिखारी भी फिलोसफी झाड़ता है कि मेरे कर्म में ही नहीं था, मेरे भाग्य में ही नहीं था, मेरे कर्म में होगा तो अगले जन्म में फिर मिल जाएगा। वो बात बात में जन्म की, पुनर्जन्म की, फिलोसफी की, कर्म की, भाग्य की, इन सब की बात करता है। सो एवरीवन, मोस्ट ऑफ द इंडियंस, हम लोग बाई एंड लार्ज जो अपने तरह से, वी आर फेटलिस्टिक, रिलीजियस, नॉन मेटेरियलिस्ट, और वो कहते हैं कि वी आर हॉस्पिटेबल बाय नेचर। जेबीएस हल्डेन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, इंडियन केमिकल लेबोरेटरी हैदराबाद में आए थे। वो उन्होंने कुछ काम भी किया था, यहाँ बसना चाहते थे पर बसे नहीं। जेबीएस हल्डेन साहब ने अपनी किताब में लिखा है इंडियन कल्चर के बारे में कि यदि आप गर्मियों में भारत में अपनी कार में जा रहे हैं और आपके कार के रेडिएटर में पानी नहीं है, और आप इंडिया के किसी गांव से गुजर रहे हैं, तो न केवल आपके रेडिएटर को पानी मिलेगा, आपको भी पानी मिलेगा, आपको खाना भी मिलेगा, आपको बैठने के लिए चारपाई या बैठने के स्थान भी देंगे, और कहेंगे साहब 2-4 घंटे रुक के आराम करके जाना। ये इंडियन कल्चर है। एक और कल्चर के बारे में बात कही जाती है कि व्हाट इज इंडियन कल्चर? इट इज एग्रीकल्चर। क्योंकि आज भी कागजों पर यह कहा जाता है, थोड़ा सा कम हो गया होगा, कि 70% पॉपुलेशन इंडिया में एग्रीकल्चर से, भारत में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। वी आर टॉलरेंट बाय नेचर, हम सहिष्णु हैं, और खराब से खराब समय को भी बिता देते हैं, और कह देते हैं दुख भरे दिन बीते रे भैया,
पूरे बुरे दिन बीत गए, अब अच्छे दिन है, अब अच्छे दिन है, अच्छे दिन आए। फिलोसफिक हो है, टॉलरेंट है, साथ ही हमारा गणतंत्र विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। मैंने पढ़ा 200 BC में भी हमारे यहाँ गणपति, यूथपति, गण यूथ, गणतंत्र, गणराज्य, गण प्रदेश, ये सब बातें की जाती थी, ये सब टर्मिनोलॉजी उपयोग में आती थी। सो वी हैव बीन यूजिंग द फिलोसफी। एक और बड़ी खास बात मैंने और पढ़ी, इंडिया दुनिया का बड़ा रेयर उन देशों में से है जहां दास प्रथा कभी नहीं रही। द होल ऑफ यूरोप, द होल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द होल ऑफ अमेरिका, द होल ऑफ साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका, इन सब ने दास प्रथा को झेला है। भारत में कभी दास प्रथा नहीं रही। भारत में नौकर से काम कराने की प्रथा तो रही है, पर दास प्रथा नहीं रही है। हमारा अपना एक आर्थिक दर्शन है, आर्थिक सोच है। यहां फिर मैं रेफरेंस दूंगा, इकोनॉमिक्स की सबसे पुरानी किताब भारत में मिलती है जिसको अर्थशास्त्र नाम दिया गया था। हमारा सिविलाइजेशन एक अलग तरह का है, लैंड एंड पीपल, हमारे लोग, हमारा प्रोफेशन, ये सब दुनिया में एक अलग ईथोस बनाता है। साथ ही इसमें जोड़ा है कि हम पॉपुलेशन में आज हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। वी आर द टॉपर्स इन द वर्ल्ड। आज हम दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं। हमारी नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्रोग्रेस है, बढ़ता वेस्टर्नाइजेशन है। आज की तारीख में हमारे देश में बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है। एक और बड़ी खास बात, क्लाइमेट की दृष्टि से इंडिया इज वन ऑफ दोज रेयर कंट्रीज, फ्यू कंट्रीज, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंट्रीज दुनिया में जहां एट ए टाइम +50 और -50 डिग्री टेम्परेचर एट द सेम टाइम होता है। मैं याद करूं, राजस्थान में नीम का थाना में जब आप 50 डिग्री टेम्परेचर होगा, उसी समय कारगिल और लेह से ऊपर -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इस क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, इस एक्सट्रीम वेरिएबिलिटी की वजह से वी आर यूनिक विद रिगार्ड टू फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा फ्लोरा और फौना मिलता है। वी गेट द हाईएस्ट फ्लोरा एंड द हाईएस्ट फौना। फ्लोरा कहा जाता है प्लांट्स को, फौना कहा जाता है एनिमल्स को। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। थिंकर्स की बात कहें, यदि मॉडर्न थिंकर्स की बात कहें, पुरानों की मैं बाद में बात करूंगा, गांधी, महात्मा गांधी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, श्री अरबिंदो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, इकबाल अहमद है, APJ अबुल कलाम हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हैं। इन जैसे महान विद्वान, अब मैं किसके बारे में कहूँ, वो कहा जाता है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। डॉक्टर राधा कृष्णन राजपूत बने, वो राजदूत बनकर रशिया में गए थे। मुझे जस्ट एक वाकया याद आ गया, मैं विषय से थोड़ा अलग हट रहा हूँ। और स्टालिन साहब बड़े क्रूर और सख्त माने जाते थे, वो किसी से भी सदा अदब से बात नहीं करते थे। जब थोड़े समय तक राधा कृष्ण जी के साथ रहे तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं और मैं बड़ा खुश हूं, मैं अपने को खुश नसीब पाता हूं कि भारत का आप जैसा राजदूत हमारे साथ है। जब उनका राजदूत का कार्यकाल समाप्त हुआ तो कहते हैं कि मैं चाहता हूं यदि अच्छा होता, यदि आप एक कार्यकाल और रशिया में रहते। वो कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, स्टालिन बड़ा क्रूर माना जाता था। खैर, तो जस्ट एक वाकया ध्यान में आ गया। वैज्ञानिकों की दृष्टि से मैं कहूँ, CV रमन साहब हमारे यहाँ हुए हैं, जगदीश चंद्र बासु जी हुए हैं, मेघनाथ साहा जी हुए हैं, रामानुजम जी हुए हैं हमारे यहाँ, अबुल कलाम जी हुए हैं। एजुकेशन की भी यदि हम बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, 1948-49 में डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था। 1953 में मुदालियर कमीशन आया था। मुदालियर कमीशन के जो सेक्रेटरी साहब थे, प्रोफेसर AN बासु, शांति निकेतन में पढ़ाते थे। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में नौकरी की 10-15 साल, और वहां उन्होंने पढ़ाया। वहां के वो फाउंडर एक तरह से माने जाते हैं। वहां से मुझे बड़ा फक्र हासिल है, और मैं इस बात को बिल्कुल पूर्ण आदर और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि वहां से दिल्ली विश्वविद्यालय से मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, MPhil किया,
2 साल पढ़ाया भी वहां मैंने। बासु साहब को तो मैंने नहीं देखा, पर उनकी मैंने 20 कहानियां सुनी है। अब वो बार बार मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि 10 लोग याद है, मैं कह सकता हूँ। खैर, 1968 में कोठारी कमीशन आया, जिसको इंडिया की बाइबल कहा जाता है, और कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा के बारे में जितना गहन चिंतन इस डॉक्यूमेंट में है उतना कभी नहीं है। ठीक इसी तरह से उसके बाद 1978 में ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई थी, 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 1993 में आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट आई। मैं फिर पुनः कहूंगा, पूर्ण आदर और विनय के साथ कहना चाहूंगा कि मुझे इस कमेटी में 2 चैप्टर्स लिखने के लिए बुलाने का मौका मिला। 2000 इसमें फिर इसे यशपाल कमेटी रिपोर्ट आई, जनार्दन कमेटी रिपोर्ट आई, 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आया, और अंत में 2020 का नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई। यहाँ मैं 1 मिनट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बारे में कमेंट और करना चाहूंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 1947 के बाद या तो एक बड़ी कमेटी या कमीशन आया था 1968 में, डॉक्टर कोठारी कमीशन था, या 2020 का कमीशन है, 20 का जो रिपोर्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जैसी रिपोर्ट, जो एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट 2020 में आया है। इससे पहले स्वतंत्रता से आज तक कभी नहीं आया। 2020 के डॉक्यूमेंट की सबसे बड़ी बात यह है, एल्विन टॉफलर साहब जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज की बात करते हैं, वो कहते हैं बैलगाड़ी युग की बात करते हैं कि एक ऐसा युग होगा कि हमें बैलगाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज दोनों साथ होंगे। इसकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रिकमेंड किया गया है कि हमें गुरुकुल सिस्टम की अच्छाइयां भी चाहिए, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, और हमें आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो मशीन लर्निंग ये भी चाहिए, दोनों हाथ चाहिए, हमें दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। वी वांट अ टिपिकल अमलगमेशन, टिपिकल इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द एंशिएंट विजडम एंड द मॉडर्न, कहना चाहिए मॉडर्न लग्जरीज कहें या मॉडर्न इन्वेंशंस कहें, इन सब का हमें एक अच्छा इंटीग्रेटेड स्वरूप चाहिए। खैर, मैं दूसरे हिस्से की ओर आता हूं, द इंडियन हेरिटेज। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, आप में से आधे लोगों ने ऑडियो ऑफ तो है लेकिन वीडियो भी ऑफ कर दिया है। मैं एक बार फिर याद दिला दूं फ्रेंड्स, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन प्लीज। हाँ जी, इंडियन हेरिटेज में मैं किताब का हवाला देना चाहूंगा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में 17 साल तक दूसरों के बच्चे बिगाड़े हैं। यहाँ एक प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी हुए हैं, इनके बड़े भाई प्रोफेसर राधा कमल मुखर्जी साहब यहाँ के वाइस चांसलर भी रहे थे। राधा कुमुद मुखर्जी साहब ने एक किताब, बड़ी मोटी किताब लिखी है, 800-900 पेज की है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, एंड दैट इज ए वर्ल्ड क्लासिक। हालांकि दुनिया में और बहुत से लोगों ने किताबें लिखी हैं एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में, लेकिन राधा कुमुद मुखर्जी जैसी इतनी डिटेल्ड किताब आज तक नहीं आई है। मैं उसका हवाला देना चाहूंगा बाद में भी। तो उसमें गुरुकुल व्यवस्था की बात की गई है। भारत में गुरुकुल प्रणाली थी, वैदिक काल के दौरान ही गुरुकुल प्रणाली स्थापित हो गई थी। गुरुकुल प्रणालियां हम लोग नाम जरूर सुनते हैं, गुरुकुल में रहते थे, और आप लोगों ने जो इसका थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन सुना होगा कि लोग रहते हैं, लंबी चुटिया वाले होते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं वगैरह। लेकिन जो 4-5 प्रमुख बातें मैं आपके गुरुकुल की बताना चाहूंगा, जो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे यदि आप सुनेंगे तो। दुनिया की सबसे हैरान करने वाली बातें हैं, कम से कम 1-2 बातें ऐसी हैं जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आज तक मुकाबला नहीं कर पाई है। मैं बार बार कहूंगा कि मैं 30 मार खा नहीं हूं, मैं खुदा से डरता हूं। मैं अमेरिका 12 बार हो आया हूं, यूरोप 14 कंट्रीज गया हूं। कोई यूनिवर्सिटी इन 2-3 मामलों में इंडियन गुरुकुल सिस्टम का मुकाबला ना कर पाती है, ना कर सकती है, कभी कर भी पाएगी, मुझे डाउट लगता है। मैं वो फीचर सुनाता हूं आपको। सबसे पहला फीचर सुनिए दोस्तों, आज 2024 में भी हम उस फीचर को ऑबे कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज
दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, चेन्नई यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, बड़ौदा यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और 50 यूनिवर्सिटीज एक अनरिटन लॉ फॉलो करती हैं कि कुलपति के रेसिडेंस के ठीक बगल में गेस्ट हाउस होता है। The guest house in the universities is just situated aside the vice chancellor's residence. ये मैप राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी किताब में दिया है। अपनी किताब में उन्होंने बाकायदा नक्शा बनाया है, लिखा तो है ही, नक्शा भी बनाया है कि ये कुलपति रेसिडेंस है, इसके एक तरफ गेस्ट हाउस है और दूसरी तरफ रुग्णालय है। रुग्णालय मीन्स हॉस्पिटल है। और उसके बाद हॉस्टल्स हैं। हॉस्टल्स में भी यह है कि छात्रों के आवास हैं, उनके बीच में एक टीचर का आवास है। टीचर के आवास अलग नहीं है, छात्रों के आवास, उनके बीच में टीचर का आवास, छात्रों के आवास, उनके बीच में टीचर के आवास। ये सिस्टम इंडिया की ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पाया जाता है। और आज भी ये फीचर मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज द फीचर वी आर कॉपीइंग फ्रॉम गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नंबर 1 मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको बड़ी अजीब सी लग सकती है। हम लोगों को ये बताया जाता है और बड़ा ये अक्सर बताया जाता है कि ज्यादातर गुरुकुल सिस्टम स्कूल लेवल का सिस्टम था। ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा 11वीं 12वीं तक 12 साल की उम्र में बच्चे को दाखिल करते थे। 12 साल की शिक्षा होती थी और 12 साल बाद 24 साल की उम्र में बच्चा बाहर आ जाता था। और इट वाज जस्ट ए स्कूल लेवल सिस्टम। नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। It was not merely a school system. It was not merely a higher secondary school system. It was not merely a college system. It was not merely a university system. It was an integrated, complete education system. Complete education system था और यहाँ पूरी की पूरी शिक्षा दी जाती थी, एक जिसको कंप्लीट एजुकेशन कहा है। और इसका मैं फिर हवाला दूंगा कि दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी उस फीचर को ना फॉलो कर पा रही है, ना कर पाएगी शायद। कम से कम 18 विषय, प्राइमरी स्कूल में 18 विषय आज नहीं पढ़ाए जाते दुनिया में कहीं भी। कम से कम 18 विषय और मैक्सिमम 25 विषय इन गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। वेद, वेदांग, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, सर्प विद्या, चर्म विद्या, विदिशा, चिकित्सा शास्त्र और पता नहीं क्या 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 पढ़ाया जाता था। प्राइमरी स्कूल में इतने विषय नहीं पढ़ाए जाते थे। इतना ही नहीं, ये सब विषय शुरुआत से ही पढ़ाए जाते थे। तो जहां 18-25 विषय पढ़ाए जाते हैं वो प्राइमरी स्कूल नहीं हो सकता है, स्कूल लेवल की एजुकेशन नहीं हो सकती। एक और बड़ा प्रूफ है, हम लोगों को ये बताया जाता है कि ये 12 साल का स्कूल सिस्टम था। नो, रॉन्ग। आप गूगल में डालें, आपको मिलेगा। देयर वर सर्टेन गुरुकुल्स जो 24 साल की शिक्षा देते थे। इतना ही नहीं, देयर वर सर्टेन गुरुकुल्स जो 36 साल की शिक्षा देते थे। और आगे ऐसे भी गुरुकुल थे जो 48 साल की शिक्षा देते थे और डिसाइपल्स, छात्र 48 साल की शिक्षा लेकर निकलते थे। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे होते थे जो कहते थे कि हम सारी उम्र शिक्षा लेंगे, तो उनको गुरुकुलों में रहने की, खाने की, पढ़ने की, पढ़ाने की सारी सुविधा सारी उम्र मिल जाती थी। अधिश्रमण, अभिश्रमण और पता नहीं क्या क्या टर्म कई प्रकार की होती है। राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में इसमें लिखा हुआ है कि जो सारी उम्र ही पढ़ना चाहेंगे उनकी एक अलग कैटेगरी है, और हर गुरुकुल में वहां जहां जहां पढ़ना चाहे उनके लिए पूरी छूट थी कि आप पढ़ो, पूरी उम्र पढ़ो। एक और बड़ी खास बात है इन गुरुकुलों में, शहर से दूर, गांवों से दूर, अरण्यक संस्कृति, कहना चाहिए कि जंगल की संस्कृति में ये पाए जाते थे। टीचर प्यूपिल रिलेशन इनकी बहुत गहरी थी। आज भी सारी दुनिया में इनका लोहा माना जाता है, इनकी बात की जाती थी। मैं यहाँ फिर एक हवाला दूंगा। ब्रिटलैंड, यूएनओ ने एक कमेटी बनाई थी, ब्रिटलैंड कमेटी। ब्रिटलैंड कमेटी 1986 में बनी थी। इस कमेटी के प्रीफेस में बाकायदा ऋग्वेद को वर्बेटम कोट किया गया कि सारी दुनिया की शिक्षा हो तो ऐसी हो। तो उस दृष्टि से देखा जाए गुरुकुल सिस्टम में और बहुत से फीचर हैं, 20 फीचर हैं। अग्नि रक्षा था, देशाटन, शिक्षाटन था,
एक मौसम में जो जाते थे, दूसरी जगह जाते थे, शास्त्रार्थ करते थे, चिंतन करते थे। तो इस तरह के गुरुकुल के फीचर्स, एक और सबसे बड़ा फीचर और बड़ा मैं बताना चाहूंगा, मैं भूल गया, सबसे बड़ा फीचर जो आज दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी पर मुकाबला नहीं कर सकती। अपने भारत में एक समय पर 5 महाआचार्य माने जाते थे। महाआचार्य, द टर्म वाज महाआचार्य। वो महाआचार्य साल में एक बार इकट्ठे होते थे और महीने भर तक कहीं इस भारत के किसी एक हिस्से में जाकर बैठते थे और महीने भर तक चिंतन करते थे, डिस्कशन, डायलॉग करते थे। और दुनिया के किसी भी आदमी को छूट थी कि वो वहां उनके पास आ सकता था और कोई भी सवाल पूछ सकता था। और इतना ही नहीं, वो 5 महाआचार्य कौन होते थे, ये डेफिनेशन बड़ी खतरनाक है। आप गूगल में पढ़िए, आपको डेफिनेशन मिलेगी। और मेरा बार बार यही कहना है कि ऑक्सफोर्ड है या कैम्ब्रिज है या आप कोई भी ले लें, इलिनॉइस ले लें, शिकागो ले लें, आईवी लीग ले लें, 7 वर्ल्ड अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनको ले लें, चाइना, कोई मुकाबला नहीं कर सकती। एक महाआचार्य उसे कहा जाता था जिसके गुरुकुल में 10,000 छात्रों को 12 साल तक रहने, खाने और पढ़ाने की सुविधा मौजूद रहती थी। A Mahacharya was one in whose Gurukul there were provisions for the boarding, lodging and education of 10,000 students for 12 years. 12 साल तक 10,000 बच्चों को रहने खाने की सुविधाएं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं है। दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ मनी। 2023 में ही उनका डॉक्यूमेंट आया कि हमारे पास डोनेशन कम हो गई, हम परेशान है, वी वांट मनी, और हम लोग परेशान है इस तरह से। बट वी हैड महागुरुकुल्स, महाआचार्यास, ये बहुत बड़ी बात थी। खैर, हमारे यहाँ एक और आदमी हुआ है जिसको 3 नामों से जाना जाता है। एक नाम उसका चाणक्य है, एक नाम उसका विष्णुगुप्त है, एक नाम उसका कौटिल्य है। कुछ लोगों ने कहा कि ये 3 अलग अलग नाम हैं, लेकिन बाद में इतिहास विज्ञों ने कहा कि नहीं, ये तीनों एक ही आदमी के नाम हैं। उसने हमें जो अर्थशास्त्र दिया, अब मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम की डिटेल्स में आ रहा हूं, उनके उसमें 4 हिस्से माने जाते थे। अर्थशास्त्र के 4 पार्ट हैं, अन्वीक्षा, त्रयी, वृत्त और दंड नीति। अन्वीक्षा में कंटेम्परेरी साइंस, लॉजिक और फिलोसफी की बात की जाती है। त्रयी में वेदों की बात की जाती है। वृत्त में एग्रीकल्चर और कॉमर्स की बात की जाती है। और दंड नीति में पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त में। अब मैं आपको विद्याओं के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे भारत में 14 विद्याएं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 14 विद्याएं नहीं, 18 विद्याएं होती हैं। कुछ लोग 14 विद्या मानते हैं, कुछ 18 विद्या मानते हैं। हम दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। तो हम पहले 14 विद्याओं के बारे में जाने, इन विद्याओं में क्या क्या है ब्रीफ में जानेंगे। अब ये तो संभव नहीं है कि उनके बारे में और डिटेल में बात की जाए, लेकिन हम एक ब्रीफ ओवरव्यू जरूर लेंगे। तो दोस्तों, इंडियन लिटरेचर की जहां तक बात की जाए तो पहले 4 वेद आते हैं। वेद 4 माने गए हैं, 4 हैं। सबसे पहला पुराना वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा वेद है अथर्ववेद, सामवेद, और चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद लेटेस्ट है, लास्ट है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मुख्य रूप से ईश्वर की प्रार्थना करना, पूजा करना, ईश्वर का वंदन करना, ईश्वर के बारे में गाना, ईश्वर के बारे में बताना, चिंतन करना, ईश्वर के बारे में फिलोसोफाइज करने पर ही ये तीनों ग्रंथ हैं। सामवेद गाया जाता है, ऋग्वेद और यजुर्वेद पढ़े जाते हैं। सामवेद में इन सब में जो श्लोक होते हैं उनको ऋचा कहा जाता है। और जो लास्ट अथर्ववेद है उसकी 1-2 खास बातें मैं कहना चाहूंगा, 2-3 खास बातें।
महाभारत काल, इसके बारे में भी फिर बड़ा मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं 1200 ईस्वी पूर्व था, 1200 मतलब 3200 वर्ष पुराना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। whatever, जो भी है, मतांतर है। जब महाभारत का झगड़ा चालू हुआ, उस समय अथर्व ऋषि एज ए चीफ एडिटर अथर्व वेद की को लिख चुके थे, उसका काम कर चुके थे, उसका संपादन कर चुके थे। ही हैड कंप्लीटेड द एडिटिंग वर्क ऑफ अथर्व वेद। एक और खास बात, इन चारों वेदों में दर्जनों महिलाओं ने योगदान दिया है, महिलाओं ने लिखा है, महिलाओं ने बराबर हिस्सेदारी की है और चिंतन मनन अध्ययन किया है वेदों को। एक और खास बात, सारे वेद एडिटेड हैं, किसी एक आदमी ने नहीं लिखे। एक ने जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा, फिर इसमें और जोड़ा। अथर्ववेद की एक और खास बात है, अथर्ववेद एक सबसे बड़ा और सबसे व्यापक और सबसे ज्यादा वेरीड एरियाज वाला वेद है। इसमें घर में चोर आने पर क्या करें, घर में सांप घुसने पर क्या करें, इससे लेकर इस बात का भी डिटेल्ड वर्जन किया जाता है कि विवाह में मिनिमम क्या क्या करना चाहिए। विवाह के पूजन में कुछ भी ना हो, आदमी के पास रुपया पैसा ना हो तो कैसे विवाह करें। मतलब एक एक डिटेल, एक एक माइन्यूट डिटेल अथर्ववेद में डिस्कस की गई है, जीवन के हर क्षेत्र के बारे में, जीवन से मृत्यु तक अथर्ववेद के बारे में। 4 वेद प्रमुख माने गए हैं, बड़े माने गए हैं। हालांकि एक व्यू ये भी है जो बड़ा ज्यादातर लोग मानते हैं कि वेद अपौरुषेय माने गए हैं। वो पुरुषों द्वारा नहीं, वो चिंतन मनन द्वारा लोगों के माध्यम से ईश्वर द्वारा लिखे गए, ऐसा माना जाता है। खैर, मैं झगड़े में नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि वेदों ने एक ऐसा पेडेस्टल, एक ऐसा बेस स्थापित किया कि सारी इंडियन फिलोसफी उसके बाद वेदों पर आधारित कहीं ना कहीं या वेदों से प्रभावित कहीं ना कहीं रही है। वेदों में 4 हिस्से हैं, हर वेद में 4 हिस्से माने गए हैं, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता और उपनिषद। आई रिपीट, ब्राह्मण, अरण्यक, संहिता एंड उपनिषद, ये 4 पार्ट, हर वेद के 4 हिस्से हैं। ब्राह्मण पार्ट है, और ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, चारों वेदों में। सच बात तो यह है कि जो मैं बाद में बात करूंगा उपनिषदों की, उपनिषद काफी कुछ वेदों से ही एक कहना चाहिए कि मत कर लिए गए हैं, छलनी करके लिए गए हैं। उपनिषद आर सिंपली द डेरिवेटिव्स ऑफ वेदास, एक बड़ा व्यू ये भी मानता है। खैर, ये 4 वेद हुए, 6 वेदांग हैं। वेदांग वेदों के अंग, वेद तो है लेकिन वेद से छोटे हैं, वो 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 वेदांग माने गए हैं, वेदों के अंग माने गए हैं। शिक्षा बात की जाती है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है, पात्र कौन है, शिक्षा कब दें, शिक्षा क्यों दें, शिक्षा कैसे दें। शिक्षा शास्त्र की बात शिक्षा नामक वेदांग में की गई है। कल्प 3 प्रकार के माने गए हैं। कल्प में ये भी कहा जाता है कि कहानियां हैं, सूत्र हैं। कल्प सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, सर्व सूत्र, जीवन के विभिन्न आयामों को, जिंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे तौर तरीके होने चाहिए, उसके बारे में कल्प सूत्र प्रमुख डॉक्यूमेंट माने जाते हैं। दोस्तों, मैं फिर याद दिला दूं, ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन प्लीज, वीडियो ऑन प्लीज। साथियों, वीडियो ऑन कीजिए। व्याकरण, द रूल्स ऑफ ग्रामर, ऐसा माना जाता है कि इस समय कामता प्रसाद गुरु और वाजपेयी साहब 2 बड़े व्याकरण के गुरु माने जाते हैं। इससे पहले पाणिनि व्याकरण के गुरु माने जाते थे। उससे भी पहले जो व्याकरण का पूरा शास्त्र है, सब कुछ कैसे लिखा जाना चाहिए, भाषा कैसे लिखी जाए, भाषा के रूल्स क्या हों, यहां मैं कहना चाहूंगा संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में कहा जाता है कि काफी हद तक
इसका कोई भी शब्द आगे पीछे कहीं भी रख दो, मीनिंग नहीं बदलेगा। इसी कारण आज भी नासा संस्कृत को ही एक अपनी एक लैंग्वेज मानकर चलता है। उनकी म्यूटेशंस, परम्यूटेशंस, उनके जो अंदर होती हैं स्थितियां जो उसमें डालते हैं सेलेस्टियल कैलकुलेशंस वगैरह में, वो जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि मीनिंग ना बदले। उसको व्याकरण, इसकी व्याकरण इतनी परफेक्ट व्याकरण मानी गई है, ये माना गया कि दुनिया की परफेक्ट व्याकरण संस्कृत व्याकरण है। छंद, छंद यानी पोइट्री। पोइट्री में 2 सूत्र माने जाते हैं, पिंगल सूत्र और छंद्र सूत्र। और ये सूत्र ये बताते हैं कि कविता की रचना कैसी की जाए। आज भी आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कविता में इतनी मात्राएं होनी चाहिए, इतने शब्द होने चाहिए, इतना इसके बाद ये अंत होना चाहिए। रूल्स ऑफ राइटिंग पोइट्री, पोइट्री को भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स से कन्वे करके लिखा जाता है। आज भी लोग जो ये अपने मानते हैं कि बिहारी है, रहीम है, कबीर है, ये जो दोहे लिखते थे इसी छंद सूत्रों के नियमों के तहत होकर ये लिखते थे। एक होता है निरुक्त, जिसको एटाइमोलॉजी या यक्ष शास्त्र कहा जाता है। एटाइमोलॉजी भाषा शास्त्र, फिर और भाषा के क्या रूल है, भाषा के क्या नियम है, भाषा की क्या एथिक्स है, इसकी निरुक्त में बात की जाती है। और अंत में आता है छठा वेदांग आता है ज्योतिष, जिसको उर्दू में नजूमी कहते हैं। नजूमी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में ये भी एक वेदांग माना गया है। तो दोस्तों 4 वेद हुए, 6 वेदांग हुए, 10 विद्याएं हो गई। 11वीं विद्या इतिहास को माना गया है। इतिहास क्या है, फिर हम बात करें। Whatever has happened in the past is a matter of history. It can be a immediate past, it can be a remote past. अभी मैंने 4-5 मिनट पहले आपसे कहा था कि ऑडियो ऑफ एंड वीडियो ऑन, तो ये भी इतिहास की बात हो गई। अब अभी मैंने मान लो ये बोतल उठाई और यहां रख दी, अब ये भी इतिहास की बात हो गई। इट कैन बी इमीडिएट पास्ट एज वेल एज रिमोट पास्ट, पुराना भी हो सकता है। तो इतिहास को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है भारतीय चिंतन में, भारतीय इंडियन लिटरेचर में। रामायण, महाभारत और पुराण। मैं यहाँ रामायण के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। रामायण बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट है। मजे की बात यह है इसके 20 वर्जन्स मिलते हैं। इंडोनेशिया की रामायण अलग है, बाली की रामायण अलग है, लंका की रामायण अलग है, साउथ इंडिया की रामायण अलग है, कंबन की रामायण अलग है, कंबोडिया की रामायण अलग है, जावा की रामायण अलग है, सुमात्रा की रामायण अलग है। 20 वर्जन्स रामायण के मिलते हैं और बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसीलिए ये माना गया है कि ये भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज है। महाभारत के बारे में राही मासूम रजा साहब, जिनसे मैं अपना एक तरह से पर्सनल रिश्ता सा मान सकता हूँ, राही मासूम रजा साहब के छोटे भाई मुनूस रजा साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। राही मासूम रजा साहब वही हैं जिन्होंने महाभारत के डायलॉग्स लिखे हैं, और बड़ा लंबा कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। महाभारत के बारे में ये कहा जाता है, वो ये कहते थे जो कहीं नहीं है वो यहाँ है, और जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। It is considered as the greatest document of India. पुराण तीसरा डॉक्यूमेंट पुराण है। रामायण, महाभारत, पुराण, 18 पुराण माने गए हैं। वराह पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, और पता नहीं कितने हैं। 18 पुराण माने गए। इनमें 2 पुराण प्रमुख माने जाते हैं, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। ये हो गए जी 11 विद्या, 4 वेद, 6 वेदांग, 1 इतिहास। 12वां धर्मशास्त्र माना गया है। धर्मशास्त्र, इट इज द बेसिस ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू आचार, विचार, प्रायश्चित, दंड। आचार विचार, बिहेवियरल, हाउ शुड वी हैव अवर बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये आचार विचार की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑडियो ऑफ रखें एंड वीडियो ऑन रहें, ये आचार विचार की बात है, तो ये धर्मशास्त्र में आएगी। प्रायश्चित,
टू रिपेंट, रिपेंटेंस, प्रायश्चित कैसे करें, हमने कुछ गलत काम कर दिया मान लो तो उसका रिपेंटेंस कैसे करें, दंड, पनिश कैसे किया जाए, इसमें मनुस्मृति आती है, याज्ञवल्क्य स्मृति आती है और पाराशर स्मृति आती है। स्मृति मीन्स ग्रंथ, मनुस्मृति का ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य का ग्रंथ है, पाराशर का ग्रंथ है। दे वर द टॉप स्कॉलर्स ऑफ देयर टाइम। कात्यायन में गिफ्टेड चिल्ड्रन, मेरा एमएड में स्पेशलाइजेशन रहा था, तो वहां मैंने पढ़ा था कि कात्यायन वाज द फर्स्ट सीयर जिसने एबिलिटी ग्रुपिंग्स की होगी। दोस्तों आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत से स्कूलों में देखा होगा कि जो टॉप बच्चे हैं वो ए क्लास में हैं, वो मीडियम बच्चे हैं बी क्लास में हैं, थोड़ा कमजोर बच्चे हैं उनको सी क्लास में रख देते हैं, एबिलिटी ग्रुपिंग्स, और सी क्लास वाले बच्चों को ज्यादा अटेंशन देके पढ़वाते हैं कि इन सबको बी में लाना है। तो इस तरह की एबिलिटी ग्रुपिंग सबसे पहले कात्यायन ने की थी। एक और बाण भट्ट बड़ा प्रमुख सोर्स ऑफ नॉलेज है। बाण भट्ट साहब 64 कलाओं की बात करते हैं, 64 आर्ट्स, जिसमें कॉपरनिकस की बात, गैलीलियो की जो मेटलर्जी की बात है, केमिस्ट्री की बात, फिजिक्स की बात, ये सारी बाण भट्ट की 64 कलाओं में आती है। तो ये हो गए 12 विद्या। 13वीं विद्या है दर्शन। दर्शन में हमारे यहाँ 12 दर्शन माने गए हैं। 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज, पुरानी फिलोसफीज मानी गई हैं, उनकी मैं बाद में बात करूंगा। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज में मैं नाम लिए देता हूं अभी सिर्फ। ऑर्थोडॉक्स फिलोसफी में आता है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज मानी गई हैं, और 6 हेटेरोडॉक्स मतलब जो बाद में कालांतर में आई वो मानी गई हैं। हेटेरोडॉक्स में हम रखते हैं सौतांत्रिक दर्शन, वैभाषिक दर्शन, माध्यमिक दर्शन, योगाचार दर्शन, श्वेतांबर दर्शन और दिगंबर दर्शन। 4 जैन दर्शन, 4 बुद्ध दर्शन से लिए हैं और 2 जैन दर्शन से लिए हैं। इनकी बात मैं अभी और बाद में करूंगा। दर्शनों के बाद एक हमारे यहाँ न्याय विद्या मानी गई है, जिसको 14वीं विद्या कहा गया है। न्याय विद्या में हम लोग लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी पढ़ते हैं। लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी में तर्क शास्त्र, तर्क क्या है, कुतर्क क्या है। हम जो डायलॉग करते हैं उस डायलॉग का भी हमारे यहाँ 4 प्रकार माने गए हैं। वाद, विवाद, जल्प, वितंडा, ये 4 वाद माने गए। एक ये होता है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहस करते हैं जीतने के लिए। कोई बात लोग बहस करते हैं कि मैं जीतूं ना जीतूं, मैं अपनी बात को ही प्रथम रखूंगा, मैं अपनी बात से नहीं मुड़ूंगा। तो इसके अनुसार पर वाद, विवाद, जल्प और वितंडा, इतना प्रकार का क्लासिफिकेशन है। न्याय में फिर वो ये प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, प्रत्यभिज्ञा है वगैरह, इस तरह से अनेकों प्रकार के न्याय के वो प्रकार माने गए और लेवल ऑफ सर्टेनिटी की डिस्कस की गई है। ये हुई 14 विद्याएं। 4 वेद, 6 उपवेद, वेदांग, 6 वेदांग, 1 इतिहास, 1 धर्मशास्त्र, 1 दर्शन और 1 न्याय, ये 14 हुए। अब 6 उपवेद और माने गए हैं। 4 उपवेद माने गए हैं, मैं 6 गलत कहा है, 6 तो वेदांग होते हैं। उपवेद 4 हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद मीन्स द लॉजिक, द साइंस ऑफ मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन। धनुर्वेद द साइंस ऑफ आर्चरी, गंधर्व वेद द साइंस ऑफ डांसिंग, और स्थापत्य वेद द आर्किटेक्चरल साइंस। यहां मैं एक और नाम रेफर करना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है, थोड़ा विषय से अलग तो नहीं है लेकिन अलग है। कर्नाटक में एक राजकुमारी हुई थी, जो वहां राजकुमारी नहीं, कहना गलत होगा, रानी हुई थी। उन पर एक 4 वॉल्यूम की किताब है, 3 वॉल्यूम की, पट्ट महादेवी शांतला। शांतला एक जैन महिला थी, रानी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता थी, दर्शन की ज्ञाता थी, न्याय शास्त्र की ज्ञाता थी, स्थापत्य कला की ज्ञाता थी, और वो ज्योतिष न्याय आयुर्वेद की ज्ञाता थी, और वो दर्शन के विभिन्न पक्षों की ज्ञाता थी। दुनिया की कोई भी नॉलेज का पार्ट ले लीजिए, दूर दूर से विद्वान, श्रवण बेलगोल आपने सुना होगा,
श्रवण बेलगोल एक नाम की जगह है कर्नाटक में, उसके पास ही उनका राज्य था। दूर दूर से आदमी उनके पास आते थे, विद्वान उनके पास आते थे, उनसे जानने आते थे, सीखने आते थे। अब मैं भारतीय संस्कृति की या भारतीय जो अपना ज्ञान परंपरा के कुछ मुख्य बिंदु बताना चाहूंगा। हमारे यहां समय को साइक्लिक माना गया है, चक्रीय। ये माना जाता है, आपने जगह जगह लिखा देखा होगा, नॉर्थ इंडिया में विशेषकर हिंदी में लिखा रहता है सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। ये दरअसल वही चेन है कि सबसे पहले यह सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आया, उसके बाद द्वापर युग आया और अंत में कलयुग है। और फिर कहते हैं कि फिर समय घूमेगा। इस बारे में दो व्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूं। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग नाम के एक विद्वान हुए हैं और ये माना जाता है कि उनको 2-4 नोबेल प्राइज भी दे दें तो नोबेल प्राइज छोड़ रहे होंगे, इतने बड़े विद्वान माने गए हैं। अभी 2017 में उनकी डेथ हुई है। स्टीफन हॉकिंग ने 10 किताब लिखी है। मजे की बात यह है कि वो लिख नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, इसके बावजूद ही वॉज एबल टू राइट द बुक्स। उन्होंने एक पहली किताब लिखी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, दुनिया की बहुत प्रसिद्ध किताबों में से एक है। मैं फिर कहूंगा कि दुनिया की मैं 50 किताबों में इसका रखना चाहूंगा ना। लास्ट एक किताब लिखी उन्होंने, द ग्रैंड डिजाइन। वो फिर जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, ब्रह्मांड का डिजाइन है, उसके बारे में बात की है। तो स्टीफन हॉकिंग साहब ने एक सवाल उठाया कि आज 23 अप्रैल 2024 है, कल 22 था, उससे पहले 21 था, किस दिन 1 अप्रैल था, इससे पहले 1 जनवरी था, इससे पहले 2023 था, इससे पहले 2000 था, इससे पहले 1000 था, इससे पहले 000 रहा होगा। तो कहते हैं वाज देयर टाइम बिफोर टाइम, क्या समय से पहले समय था? यदि समय से पहले समय था तो इसका मतलब समय पहले नहीं और पहले शुरू हुआ है। वो कौन सी स्थिति है जब समय शुरू हुआ? When did the time begin? स्टीफन हॉकिंग साहब इसका उत्तर नहीं दे पाते, हालांकि उन्होंने इंडियन फिलोसफी का जरूर हवाला दिया है। भारतीय दर्शन में कल्पना की गई है हिरण्यगर्भ की। हिरण्यगर्भ एक बहुत बड़ा सुनहरा चमकीला गोला था जिसको आज लोग ब्लैक होल के समतुल्य मानते हैं। आज लोग कह रहे हैं कि जो ब्लैक होल है हमारे यहाँ बोसोन पार्टिकल्स, जो गॉड पार्टिकल कहा गया, उससे भी कहते हैं कि इस सब से इसका कुछ लेना देना है। तो वो टाइम समय के अनुसार यदि बात की जाए तो इन चीजों का रेफरेंस यहाँ बड़ा जरूरी है। इन चीजों के बारे में भी भारतीय दर्शन में लिखा गया है। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। मैं इसका राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में जो क्लासिफिकेशन मिलता है, जो वर्णन मिलता है, मैं उसके अनुसार वर्णन करना चाहूंगा। ब्राह्मण वो था जो 6 काम करे। 6 काम कौन से हैं? ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, और 5वां छठा यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। ये 6 काम ब्राह्मण के माने गए थे। कहता है कि यदि उस लिहाज से आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में लें तो जितने भी टीचर सारे देश में हैं, सारे देश के जितने टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर, इतना ही नहीं, ट्रेनिंग सेंटर्स जितने भी हैं, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर ले लीजिए, BSNL का ट्रेनिंग सेंटर ले लीजिए, बैंकों के ट्रेनिंग सेंटर ले लीजिए, ट्रेनिंग देने वाले समस्त अध्यापक ब्राह्मण हैं। दे आर ऑल टीचर्स। इस लिहाज से ऑल ऑफ अस आर ब्राह्मण्स, यदि हम राधा कुमुद मुखर्जी की बात लें। कहता है कि क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो है जो देश और समाज की रक्षा करने में संलग्न हो। सबसे पहले पुलिस, CRPF, BSF, होमगार्ड, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, या इतना ही नहीं, हमारे घरों की, हमारी जो मल्टीपल सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जो चौकीदार हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, दे आर ऑल क्षत्रियास, दे आर इन्वॉल्व with the security of the people. वैश्य, वैश्य उन्हें कहा जाता है, बड़ा क्लियर है, चाणक्य ने भी कहा कि जो वस्तुओं का उत्पादन करें और विनिमय करें, who produce the goods, उनका कॉमर्सिंग करें, उनका विपणन करें, उनका लाने ले जाने का काम करें,
उस दृष्टि से देखा जाए तो जितनी भी कंपनीज हैं दुनिया की, देश की जितनी भी कंपनीज हैं, जो कुछ भी माल उपजा रही हैं, जो भी कृषि है, जो भी हम उत्पादन बना रहे हैं, जो भी हम एवन फिशरीज है, ये सब लोग वैश्य लोग हैं। अब आगे कहता है बड़ा बढ़िया, शूद्र का विशेषण, अन्य सभी जो बचे हुए कार्य हैं वो सब शूद्र करेंगे। अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि किसी ने 12 साल पढ़कर डॉक्टरी को प्रैक्टिस करता है, वैद्य का काम या आयुर्वेद की वो प्रैक्टिस करता है, तब तो शूद्र हो जाएगा। लेकिन यदि पढ़ाता है तो ब्राह्मण हो जाएगा। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर्स है, बैंकर्स है, जितनी भी सर्विसेज हैं, ऑल ऑफ देम आर शूद्रास। हमारे भोजन कर बनाने वाले हैं, हमारे काम करने वाले हैं, हमारे घर के नौकर हैं, या समाज में जितनी सेवा कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर, सब, इवन यहाँ नहीं, राजनीतिज्ञ भी शूद्र माने गए, इवन पॉलिटिशियंस, क्योंकि सेवा कर रहे हैं देश की, दे आर ऑल शूद्रास। हमारे आश्रम भी 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों की आयु 25-25 वर्ष मानी गई है। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम 26 से 50, वानप्रस्थ 51 से 75, संन्यास 75 ऑनवर्ड्स। अब इनका मीनिंग जो बताते हैं वो कहते हैं ब्रह्मचर्य वह है, ब्रह्मचर्य आश्रम वो है जो 11 इंद्रियों का नियंत्रण करना सीख ले। हमारे यहाँ 11 इंद्रियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। ज्ञानेंद्रिय आप सब जानते हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। कर्मेंद्रिय भी 5 मानी गई हैं, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। वाक माने आवाज, हाथ, हस्त हाथ, पाद पायु, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ, जेनाइटल ऑर्गन्स एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, मलेंद्रिय और जनेंद्रिय। ये 5 और 5 10 और 1 मन, इन 11 पर जो नियंत्रण करना सीख ले उसे हम ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद धर्मानुकूल जो आचरण करे, 26 से 50 साल तक धर्म के अनुसार जो गृहस्थ धर्म का पालन करे, विवाह हो, बच्चे हो, उन सब का जीवन में उनका अनुसार पालन करे गृहस्थ धर्म का, वो गृहस्थ कहलाएगा। 51 से 75 कमाए, बेशक कमाना बंद ना करे, लेकिन काम घर के लिए नहीं करेगा, अब काम अब समाज के लिए करेगा। और 76 से ऑनवर्ड्स अब घर के लिए भी काम नहीं करेगा, समाज के लिए भी काम नहीं करेगा, अब एडवांस लेवल का रिसर्च करेगा, थिंकिंग करेगा, भक्ति करेगा, चिंतन मनन अध्ययन करेगा, वो सब लास्ट संन्यास आश्रम में माना जाएगा। हमारे यहाँ एम्स ऑफ लाइफ 4 माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें हमारे यहाँ ये कहना गलत है कि इंडियन बिल्कुल बहुत ज्यादा नॉन मेटेरियलिज्म पर वो करते हैं, बिल्कुल गलत है। धर्म और मोक्ष स्पिरिचुअलिस्टिक है, जबकि अर्थ और काम वो मेटीरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए है। तो अर्थ और काम को एक गृहस्थी को पालन करना चाहिए, अर्थ और काम का डेफिनेटली, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों आश्रमों का पालन कर, चारों एम्स का पालन करते हुए जीवन बिताए। नेक्स्ट हमारे यहाँ उपनिषद की बात की गई है। 108 उपनिषद हैं, मैं कल परसों ही उनका क्लासिफिकेशन कर रहा था। कुछ उपनिषद तो इतने छोटे हैं कि 1-1 पेज के हैं, 6-6, 7-7 श्लोक हैं बस, और उपनिषद हो गया। कुछ उपनिषद 2-2 पेज के ही हैं। प्रिंसिपल उपनिषद इनमें से कुछ लोग 18 मानते हैं, कुछ लोग 10 मानते हैं। 10 को मुख्य उपनिषद कहा है, मैं कई दिन से पढ़ रहा हूँ, 10 मुख्य उपनिषद माने गए। कुछ लोग 8 मान रहे हैं, कुछ लोग 5 मान रहे हैं। बृहदारण्यकोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, ईशवास्योपनिषद, इस तरह से बड़े प्रमुख उपनिषदों में ये है। हमारे यहाँ रिलीजन की बात करें हम, बड़ा इंटरेस्टिंग अब यहाँ मिलता है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो दुनिया के 4 धर्म का ओरिजिनेटर है। हिंदू धर्म, जैन धर्म,
बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ऑल फोर हैव बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। लेकिन एक और खास है, मुस्लिम फिलोसफी की जहां तक बात की जाए, इस्लाम फिलोसफी की बात की जाए, इस्लाम का उदय भारत में नहीं हुआ, लेकिन इस्लाम दर्शन का सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फिलोसफी का भारत में हुआ है। इस्लाम के बड़े से बड़े सेंटर्स, दुनिया के बाद भी सेंटर्स भारत में हैं। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सर प्लीज। सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था जी, कि हजरत आदम के साथ इस्लाम भी सबसे पहले भारत में ही आया है। मैं सर कहना नहीं चाहता था, आपने कह दिया। मैं थोड़ा सा जान के नहीं कह रहा था, आप कारण समझ सकते हैं। हाँ, और मैं इसके ताल्लुक से जो है काफी मतलब शवाहिद हवाला जात पेश कर सकता हूँ मैं। जी जी जी, ऐसा माना जाता है कि हजरत मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद भारत आए थे। ये बड़ा क्लियर इसका एविडेंस मिलता है। खैर, तो मेरा कहना यह है कि जो धर्मों का, दुनिया का क्रिश्चियन धर्म को हम छोड़ दें, क्रिश्चियन ना तो भारत में उदय हुआ, ना इतना विकसित हुआ, लेकिन जो फिलोसफी डेवलप हुई है, जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई है, वो हिंदू फिलोसफी, मुस्लिम फिलोसफी, जैन फिलोसफी, बौद्ध फिलोसफी, सिखिज्म फिलोसफी, यहां तक कि पर्शियन फिलोसफी को भी ये माना जाता है कि भारत में इसका काफी विकास हुआ है। ऐसा भी एक व्यू है, जो वो है संजीव सान्याल की किताब है द लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, उसमें बड़ा साफ कहते हैं वो कि पर्शियन धर्म भारत में था, यहाँ से फिर पारसी ईरान गए, ईरान से कुछ ज्यादातर लोग वापस आ गए, और जो ईरान में बस गए वो ईरान के लोग कहलाए। और जूज फिलोसफी जरूर माना जाता है कि ये भी इंडिया में नहीं हुई है ये, लेकिन जूज और पर्शियन फिलोसफी के कुछ बड़े प्रिंसिपल भी इंडियन फिलोसफी से मेल खाते हैं। अब हम दर्शनों की बात करें, दर्शनों की मैंने बताया था कि 6 ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य योग, मजे की बात यह है, फिर इसका वर्णन वेदों में मिलता है। योग भी 2 माने गए हैं, पातंजलि योग सूत्रम और वशिष्ठ योग सूत्रम। वशिष्ठ योग सूत्रम का रेफरेंस रामायण में रामचंद्र जी को वशिष्ठ देते हैं। योग के 8 अंग माने गए हैं। मैं सांख्य की बात करूं पहले। सांख्य को कुछ लोग कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था, कुछ लोग कहते हैं ये संख्या की बात करता है, कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ या इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करता है। सांख्य में पुरुष, प्रकृति, और फिर वो बात करते हैं कि ये कौन है, ये सतयुग, ये सॉरी सतगुण, तम गुण, रजगुण की बात करते हैं। प्रकृति, महत, अहंकार, और फिर वो 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत, 5 पंच मन, तन्मात्रा, महाभूत और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ये 21 और 4 25 कुछ लोग इस तरह से जोड़ते हैं। योग 8 अंग माने गए हैं, अष्टांग योग माना गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, 8 अंग माने जाएंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा, लेकिन एक योग एक ऐसी क्रिया है, आज दुनिया के जितने भी 200 से भी ज्यादा सभी देशों में योग की बात आज की जा रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि केवल हम आसनों तक ही सीमित हैं। एट मोस्ट प्राणायाम की बात कर लेते हैं, आसन और प्राणायाम। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि यम और नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यम और नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो आसन और प्राणायाम बेकार है। खैर, वैशेषिक दर्शन भी इवोल्यूशन की बात करता है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। दुनिया में चीजें कैसे आई, इवॉल्व कैसे हुई, इंटीग्रेशन कैसे हुई, इस सब की बात करते हैं। न्याय दर्शन, दूध का दूध, पानी का पानी कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, भेद, ये सब की बातें की गई है। लॉजिक की बात की गई है, कहा गया कि कितना लॉजिक की लेवल ऑफ सर्टेनिटी क्या है। इसमें भी फिर लौकिक प्रत्यक्ष, अलौकिक प्रत्यक्ष, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। न्याय शास्त्र मींस द सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो यदि हमारे उन्होंने किया था, जेएस मिल की बात है, उसी का थोड़ा एक एडवांस वर्जन मान के चले इन्होंने बात की है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा के 3 नाम है।
उत्तर मीमांसा के भी 3 नाम हैं, पूर्व मीमांसा या मीमांसा या कर्मकांड। एक ही बात है। जो मेरी आपकी दादी नानी कहती थी कि ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, करनी भरनी, कर्म है, ईश्वर है, पुण्य है, पाप की बात मीमांसा दर्शन में की गई है। उत्तर मीमांसा के भी 3 नाम हैं, एक उत्तर मीमांसा, दूसरा वेदांत और तीसरा उपनिषद। ये तीनों में जैसा मैंने बताया 108 उपनिषद। उपनिषद, उप माने निकट, निषद माने बैठना, गुरु के निकट बैठना। जो कोई भी जानने वाला है, जो कोई भी जानकार है, उससे बैठना, निकट बैठना, सीखना, शिक्षा लेना। तो 108 प्रकार के उपनिषद हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में बात की गई है। इन हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज में मूल जो बुद्ध दर्शन था वो 4 प्रिंसिपल्स पर आधारित था। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। जीवन दुखम अस्ति, दुखम मार्गम अस्ति, मार्ग निषेध अस्ति, निषेधस्य मार्गम अस्ति। इस तरह से इस 4 वो है माने, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय किया जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य, 12 निदान और अष्टपदी मार्ग जो माना गया है बुद्ध दर्शन का, ये मूल दर्शन था। ये कालांतर में 2 दर्शनों में बट गया, महायान और हीनयान, और कालांतर में 4 दर्शन में बट गया, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। और आगे चल के डॉक्टर राधाकृष्णन ये कहते हैं कि सन 200 ईस्वी के आसपास जब वैशाली में सबसे बड़ी सभा हुई थी, उसमें 218 प्रकार के मत थे और सारे मत बुद्ध धर्म के मत थे। इतना आपस में मतांतर हो गया था। जैन दर्शन जो है, जैन दर्शन में फिर हम कहें मतांतर हैं। जैन दर्शन पहले मूल जैन दर्शन था, कालांतर में इसमें श्वेतांबर और दिगंबर हुआ, फिर इसमें और बट गए, 13 पंथ और नव 13 पंथ हुआ। लेकिन मोटे तौर पर इनको 2 दर्शनों को लिया जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके अलावा जैसे मैंने बताया चारवाक दर्शन है, इस्लाम फिलोसफी है, जैन और बुद्धिज्म फिलोसफी है दर्शन में। अंत में मैं ये इतना कहना चाहूंगा, और मैं आप सबके लिए प्रश्न के लिए छोड़ूंगा, अभी समय करूंगा कि जो मैंने जो रेफरेंस लिए हैं, ज्यादातर बात की है। एक किताब जैसे मैंने बताया था, पट्ट महादेवी शांतला, किताब का नाम ही पट्ट महादेवी शांतला है। दूसरी मैं रेफर करना चाहूंगा, मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, मुश्किल से 100 पेज की किताब है, दुनिया की पहली 50 किताबों में मैं भी ये रखूंगा। मतलब मैं कोई बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति कर रहा हूँ, मतलब मैं 30 मार्क का नहीं हूँ, मैं खुदा से डट के चलता हूँ। इस कमरे में मेरे में 5,000 के करीब किताबें हैं और करीब 20 अलमारियां हैं, मैंने ज्यादातर पढ़ रखी हैं। उनमें से टॉप 50 किताबें मैं अपनी यदि में कहूँ, उनमें से एक मैं किताब रखना चाहूंगा। ब्रायन वेस्ट की किताब है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। अभी भी ये जिंदा है। मैं अमेरिका में गया, इनसे 2 बार बात की, मिलना चाहा तो बाई चांस हमारा तय हुआ कि मिलेंगे, लेकिन अचानक फोन आ गया कि वशिष्ठ जी मैं जा रहा हूं, मैं मिल नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है काम पर। अब बड़ी उम्र के हो गए, ही इज मोर देन 80। प्रोफेसर ब्रायन वेस्ट, ही वाज प्रोफेसर ऑफ न्यूरो साइंसेस एंड साइकोलॉजी, और अब तो इनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इनका फ्लोरिडा में। इनकी किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, आप पढ़िएगा, आनंद आएगा। हिंदी में भी ये ट्रांसलेशन हो चुकी है। एक E.F. शूमाकर साहब हैं, उनकी एक किताब है द गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, परेशान के लिए सलाह। इट इज अगेन ए वंडरफुल बुक, आई कीप इट इन फर्स्ट 50। थर्ड वेव और फ्यूचर शॉक नाम की 2 किताबें एल्विन टॉफलर साहब ने लिखी है, मैं इनका हवाला देना चाहूंगा। मैंने एक और किताब का जिक्र किया था, लैंड ऑफ 7 रिवर्स बाय संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जी इस समय आज की तारीख में, बाद में वो राजनीति में आ गए, वो प्लानिंग कमीशन के मेंबर है। मैं राजनीति में आ गई ये कहना तो गलत होगा, पर प्लानिंग कमीशन के मेंबर है। इनकी किताब है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। वो इंडिया के इन्होंने कशीदे काढ़े हैं कि इंडिया में क्या था जो दुनिया में नहीं था। और जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी किताब मैंने बताई थी, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन बाई राधा कुमुद मुखर्जी साहब की किताब है। हालांकि इसके अलावा और भी किताब है, नरूलाल नायक ने लिखी है, PL रावत ने लिखी है, ये की साहब ने लिखी है,
और अभी अनेक किताब हैं, लेकिन डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी जैसी एंशियंट इंडियन एजुकेशन के बारे में लिखने वाली किताब कोई नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा अभी, और 2 मिनट और मैं लेता हूँ। फिलोसफीज की बात रह गई है हमारे पास। जैसे मैंने बताया, भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन में षड दर्शन कहा गया है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। भारतीय मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान में चित्त, कर्म, और कहना चाहिए चित्त की भूमिया, ये सतगुण, तम गुण, रजोगुण की बात की गई है, और जो 5 पंच लेयर्स की बात की गई है। मैं भी पंचकोश, मन में कोश, ज्ञान में कोश, आनंद में कोश, प्राण में कोश, इस तरह से 5 कोशों की बात की गई है। हमारा भारतीय इंडियन हिस्ट्री का देखने का अपना एक नजरिया अलग है। इंडियन इकोनॉमिक्स की मैंने आपसे बात की, इंडियन कॉमर्स की बात की। हमारे यहाँ विपणन का जो तौर तरीके रहे हैं सदा, वो अलग तरह के रहे हैं। यदि मैं बात कहूँ, इंडियन बॉटनी, वृक्षायुर्वेद हमारे यहाँ रहा है। इंडियन मेटलर्जी के बारे में पीसी रॉय साहब ने एक किताब लिखी है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रे कहा जाता है इनको। और इंडियन मेटलर्जी के बारे में एक सज्जन आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी सॉरी ये कौन सी है, खड़गपुर के सज्जन ने शायद किताब लिखी है, इंडियन मेटलर्जी हमारे यहाँ बहुत हो रही है। विमान शास्त्र हमारे यहाँ बात की गई है, विमान शास्त्र की। विमान शास्त्र के फिर वही लंबी कहानियां, मैं उसमें झगड़े में नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा कि कालिदास ने मेघदूत में जिन जगहों का रेफरेंस दिया है, एक फिजिक्स के प्रोफेसर आए थे और एयरफोर्स में भी वो पायलट रहे थे, वो कहते हैं आज भी दुनिया का कोई आदमी उन जगह पर बाई रोड नहीं जा सकता, केवल बाई एयर जा सकता है। कालिदास ने कैसे वर्णन किया, वी डू नॉट नो। साइंटिस्ट में जैसे मैंने बताया, सीवी रमन साहब है, एसएन बोस है, मेघनाथ साहा है, होमी जहांगीर भाभा हैं, एस चंद्रशेखर है, विक्रम साराभाई जी हैं, जीएन रामचंद्रन जी हैं, जयंत नार्लिकर साहब 90 साल से उम्र के हो गए हैं, बेंगलोर में रहते हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जयंत विष्णु नार्लिकर। मैंने इनका लेक्चर सुना है, इनसे बात की है बाकायदा। हरीश चंद्रा जी, संदीप चक्रवर्ती जी। पुराणों में यदि हम बात करें, भास्कराचार्य थे, सुश्रुत थे, चरक थे, हलायुत थे, नागार्जुन थे, कपिल मुनि थे, वराहमिहिर थे, कणाद थे। मॉडर्न उसमें हम कहें विश्वेश्वरैया जैसा इंजीनियर सारी दुनिया में आज तक नहीं हुआ। बाणभट्ट थे, कल्लण ने लिखी है राज तरंगिनी, और कालिदास ने तो मैंने बताई था। शंकराचार्य जी की एक किताब का और मैं रेफर करना चाहूंगा, विवेक चूड़ामणि और दृग दृश्य विवेक। इनकी दुनिया की श्रेष्ठतम पुस्तकों में से मैं इसको रखना चाहूंगा, विवेक चूड़ामणि और दृग दृश्य विवेक। इति श्री रेवा खंडे। मैं कहूंगा कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का मैंने ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आपके प्रश्न, 10 मिनट हैं बचे हैं मुश्किल से, आपके प्रश्न, ऑब्जर्वेशंस। डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर इसके बाद सुमुख नंदन साहब कहेंगे कुछ। सर बोले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय महान प्रकांड विद्वान, एक ज्ञान का सागर प्रवाह है। सर मैं यहाँ कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। सर आपने कहा था शुरू में कि बनारस का जिक्र सतयुग में मिलता है। भारतीय इतिहास में काल को 4 मतलब ये कि उसमें तकसीम किया गया, विभाजित किया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और सतयुग का जो जमाना है इंसानी साल, वामन शिवराम आपटे ने वामन शिवराम आपटे ने सतयुग की जो मतलब ये कि मिकदार, उसका जमाना बताया है, वो 17,28,000 इंसानी साल है। तो मैं मालूम ये करना चाहता हूं कि 17,28,000 इंसानी साल पहले क्या बनारस का वजूद था? सर वर्णन यही मिलता है, यस, क्योंकि आज भी हरिश्चंद्र घाट है। मैं नहीं जानता, ये तो इतिहासविदों का सवाल है। सर मैंने इतिहास 8वीं तक पढ़ा है, छोटा मोटा जैसा भी हो, मैं क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन गूगल में यदि हम डालें, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज बनारस। अच्छा, दूसरे वेदों का जमाना किसी ने हजारों साल पहले किसी ने कुछ कहा है, लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट हैं भारतीय मतलब ये कि साइंसदान,
उन्होंने कहा है कि वेदों का जमाना, ऋग्वेद का जमाना हम मान सकते हैं 1200 से लेकर के 1500 तक। तो ये मतलब बीसी, 1200 से लेकर 1500 बीसी तक। तो अब कहाँ सतयुग और वेदों का जमाना, तो फिर मतलब बहुत प्राचीन होना चाहिए। जी। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था, दूसरा सवाल मेरा ये था, दूसरा सवाल ये था कि हाँ, कि अभी जो है बात बता रहे थे कि आप कि जो भी मतलब ये कि टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो आते हैं ब्राह्मण के उसमें मतलब ये के, और जो मतलब ये के जितने भी राज करने वाले हैं, हुक्मरान हैं, ये आते हैं छतरी के उसमें। नहीं, और ये मतलब हाँ, छतरी में सर इनको शूद्रों के उसमें माना गया है। नहीं, यदि जो राज कर कई फेजेस निकले हैं। यदि एक और किताब का मैं रेफरेंस दूंगा सर, सॉरी मैं बीच में ही आ गया। मैं असल में थोड़ा इसमें जरा थोड़ा मैं उसमें हूँ, मैं पूछना ये चाहता हूँ मैं, और इसी तरीके से जो वैश्य हैं, जो लोग मतलब प्रोडक्ट लेकर आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं, वो वैश्य में आते हैं। तो मेरा पूछना ये है कि स्मृतियों को जो हमने अध्ययन किया है, पढ़ा है, तो स्मृतियों में आता है कि जब ब्राह्मण के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मंगलवाचक, और छतरी के यहाँ पैदा हो तो उसका नाम बलवाचक, जिससे ताकत का इजहार होता हो, वैश्य के यहाँ पैदा हो तो उससे धनवाचक, जिससे धन का इजहार होता हो, शूद्र के यहाँ बच्चा पैदा हो तो निंदावाचक, समझे। इसी तरीके से दिशाएं तकसीम की गई हैं कि ये दिशा ब्राह्मण की है, ये छतरी की है, ये वैश्य की है। इसी तरह जानवर तकसीम किए गए हैं। इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह इसको हम समझ सकते हैं? सर इसमें हमें इतिहास का बड़ा शानदार, आपने बहुत शानदार सवाल उठाए हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सर इतिहास 100% विश्वसनीय नहीं है, बड़ी साफ कहना चाहूंगा मैं, नंबर एक। नंबर दो, इतिहास पर प्रश्न लगाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हमें आंख मीच के कई जगह स्वीकार करना ही होगा। मैंने इतिहास की किताब में पढ़ा, मैं कहूं कोई कहे कि मैं इन माँ बाप का बेटा हूं, तो मैं इसको क्वेश्चन नहीं करता, मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं। हालांकि ये भी एक इतिहास का तथ्य है, लेकिन वो एक बात है, हमें ये कहना पड़ेगा भारतीय इतिहास इतना छिन्न भिन्न रहा है सर। यहाँ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, हमारे इतिहास विज्ञों में इतना मत है, एक चीज बड़ी साफ है। आप 1200 और 1500 बीसी की तो बात कर रहे हैं सर, बेबीलोन सिविलाइजेशन 2500 बीसी का है। बेबीलोन से भी पहले जो, अब ये क्लियर हो गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन 5000 ईस्वी पूर्व का है। अब ये एस्टेब्लिश हो गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो अब पाकिस्तान रावलपिंडी के आसपास था। और अब ये भी क्लियर हो गया है, जो लेटेस्ट अभी 2023 की आई है, कि हमारे यहाँ दसियों हजार साल पहले संस्कृति थी। कैसी थी? लोग रहते थे, बातें थे, लेकिन वेद की सायु के इन चीजों का कोरिलेशन अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। ऑल थिंग्स आर इन द डाउट, इसलिए इस पर एक मत बनाकर नहीं चला जा सकता, ना चलना चाहिए। देखते जाएं, जो लोग बताते जाएं हम मानते जाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आपका नंबर मिल जाए तो कुछ आपसे सीखने का मौका मिलेगा। आप सर, मेरा तो हमारे जो ये है अपने जो बहुत शाकिर साहब हैं, इन पर मेरा नंबर है। आप, मैं डेफिनेटली मैं भी दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हमारे ये जो शाकिर साहब और ये जो हमारे कोर्स के इंचार्ज है जमाल साहब, सैयद जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, और जो इसके डायरेक्टर फैजा मैडम है, इनसे किसी से भी मेरा नंबर ले सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सुमुख नंदन जी कुछ कहना चाहते हैं। सुमुख जी नमस्कार सर। सर हेलो, गुड आफ्टरनून। आफ्टर वीडियो में तो आ जाएं जरा, एक बार हम आपका दर्शन दीदार पालें। सुमुख जी बोलें प्लीज। ठीक है सर। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर discussing very elaborately about this Indian culture. And I have to say two things. दो चीजें कहना चाहता हूँ। पहले ये है कि Indian knowledge system, the essence as I understand is knowing the truth so that we can perceive everything very clearly. The Indian knowledge system pushes people to seek the truth so that everything becomes clear for them on their own. I feel you can understand that this is from Chandogya Upanishad, which I talk about, where Uddalaka and Shwetaketu, they converse. Knowing that, I can know everything. What is that? The father asked the child. Yes. What is that thing which, by knowing which, you can know everything? Everything can be known. ये मेरा फेवरेट सवाल है साहब। उद्दालक मेरा फेवरेट वो है, मैं फैन हूँ उद्दालक का। So coming to the current scenario, that we have to teach students who come under NEP,
and students do a lot of courses to get various jobs. They are not bothered about the other things, because the current scenario is you need to have a comfortable living. So the all our system is based on the living more than education for life. So how can you implement the essence of Indian knowledge system in these students in a practical way? This is my first question. And Okay. second one, I would like to tell after you respond to my questions. सर मैं एक लाइन में उसका उत्तर देना चाहूंगा। एक लाइन में मेरे गुरुजी कहा करते थे, न तुम झूठे न हम झूठे, इश्क में सच ही का तो रोना है। दिक्कत ये है सर, एक्चुअली जो सबसे बड़ी परेशानी है जो आप उठा रहे हैं, बता रहे हैं, आज हालात नहीं बदलेंगे, जैसी भी है वही है। हम सोचें कि 1947 की टीचिंग हो जाए, वो संभव नहीं है। गिफ्टेड चिल्ड्रन एक ऐसा होता है, ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन्हीं हालातों में छात्रों को पढ़ाना है तो पढ़ा लो, बाकी आपकी चॉइस है। मैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी का हवाला देना चाहूंगा। बीएचयू में कुछ छात्र आंदोलन करते हुए आ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद फलाना, 50-100 छात्र आ गए कि हम वीसी से मिलेंगे, वीसी से मिलेंगे, बात करेंगे। मैं कहा कि वीसी से क्यों मिलेंगे, वीसी तुमसे मिल लेगा। बाहर आ गए और उसमें बैठ गए पार्क में, बोलो क्या कहना है। बैठे, बात करी, चाय पानी पी, उन्होंने अपनी डिमांड रखी, डायलॉग किया, डिस्कशन किया कि तुम ही देख लो, तुम ही कमेटी बना लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लोग जो कहोगे हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, बात ही खत्म। मैं फिर कहूंगा, ऋग्वेद में कहा गया है, संगत सद्वम संवदद्वम संगो मनान से जानता। साथ बैठेंगे। यदि हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समाज बदल लेगा सर। मैं एक और बड़ी बात कह दूं, बड़ी खराब लगेगी, आप पसंद करें या ना करें, 10 साल के अंदर इंडियन यूनिवर्सिटीज अपने आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के कैरेक्टर में बदलने जा रही हैं। अच्छी और बुरी दोनों बातें आएंगी, हमारे ऊपर है हम कौन सी अच्छी लेते हैं, कौन सी बाहर लेते हैं। मैं एक और बात कहूं खतरनाक, मैं सड़क से बाहर निकलता हूं, मेरे घर के बाहर सब लोग, भारत, मेरा शायद मानना है दुनिया में शायद भारत एक रेयर देश है जो गालियों की महान परंपराओं को लेकर चलता है। अब मेरा बच्चा गाली भी सीख सकता है, तमीज भी सीख सकता है, तहजीब भी सीख सकता है, चॉइस ऊपर है। आई स्टॉप हियर। So just one I wanted to complete. You said the four varnas in the Indian system. I would like to just interpret an analogy that every human being, whatever faith he believes in, when he gets up in the morning, his mind thinks for looking for, searching for the truth. Good. It need not be a truth, but it can. He is constantly in search of something, Right. seeking new things, seeking knowledge. So he becomes automatically, whoever he is a Brahmin, because he's trying to know the Right. truth. And as the day progresses, he goes on to protect his own children, family, and everybody, Right. and Kshatriya. protect himself. So he becomes Kshatriya. And third, he goes to earn a living not only for him, for Right. also others. He becomes, and at the end, he does his own work, whether it is cleaning or taking care, offering seva, everything. He becomes. Is So all it is a practical way where everybody every day follows this. बढ़िया, जैसे आप देखना चाहें, एब्सोल्युटली ओके। प्रैग्मेटिक लुक से आप कुछ कहना चाहते हैं? Yes, sir. First of all, thank you for that very elaborative lecture. Thank you, sir. मैं भी बनारस काशीवासी हूँ सर. अरे वाह! So my first question is, I think that this very concept of 4 varnas, we are trying to redefine it, because what I think is that we have seen that a lot of people raising objections of this varna system. So I we agree. are actually, let me complete, sir. So what I think is that you are not the only person. I have seen many people, when they are unable to answer the question, they are not trying to give a new definition of this varna system. Whereas Chanakya, whom you have quoted, when my next question is related to Chanakya, he says a person may be born in a very low caste. He says, Akulinopi vidya vandavarepi sa pujate king kulena vishalena vidyahinasya dehina Akulinopi vidya vandavarepi sa pujate. So here Chanakya is talking about caste which is by birth. But what I think is that in the modern trend, we are unable to
answers such questions, how caste is determined by birth. So we are trying to redefine the boundaries. This is my first observation. My second question to you is, can you please tell me where is the oldest copy of the Vedas are kept, oldest written copies of the Vedas? And the third is, बढ़िया. Chanakya in itself, I think, this is again my observation, is a character which was created over the period of the time. The Kautilya Shastra which you quoted in your lecture, it does not talk about Chanakya anywhere. Please, your comments, please. Sir, number one, I would say, what I talked about was from R.K. Mukherjee's book. So I have nothing to add. Personally, I do not believe in caste system. That's a personal issue I'll not discuss. But throughout my life, I have never differentiated in my life, in the marriages of my children and all. All are, say, marriages out of caste. The third thing, Khuda Bakhsh Library, Patna, is having a one manuscript. And London Royal Library, London, is having one manuscript. Vedas manuscripts are there. Two of them are there, at least 2 copies. एक और आपने सवाल उठाया था, वो कौन सा था सर? मैं भूल रहा हूँ. तीसरी बात जो उठाई थी आप, चाणक्य. यस सर, जैसा मैंने बताया, there is a difference of opinion, very clear of opinion. Some people say they are 3, some people say they are 2, some people say they are 1. I'll not commit on any sides. I'll not commit. History, it is a matter for the historians to decide. And history is a very controversial thing. So I'll not dwell into that. चलिए सर, बहुत धन्यवाद. आपका दर्शन है विराशी. कभी काशी नगरी में फिर से मेरी हाजिरी हुई तो आपके साथ बैठ के दशाश्वमेध घाट में लस्सी पियेंगे सर. धन्यवाद. डेफिनेटली सर, आप काशी में हैं, मैं तो लखनऊ वासी हूँ. लेकिन अच्छा, नहीं, मैं हूँ तो काशी वासी, लेकिन इस वक्त दिल्ली में हूँ, लेकिन हूँ काशी वासी. दिल्ली में कहाँ? मैं जामिया हमदर्द में हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, मेरा मायका दिल्ली है, आना रहता है दिल्ली मेरा. चलिए, खुदा करे कि हम मिले इंशाल्लाह. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. आई फील ऑनर्ड एंड रिलेटेड to be associated with this good lecture series. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Right. Thank you very much, sir. Thank you. Thanks a lot. Participants, you are requested to join the other link